All right, so today's paper is our October-November 2023 variant 23. I've told this before, variant 23 or 21 का ख्याल करो. Look at it very closely. The idea is the same. Case study है सबसे पहले, उसके बाद माइक्रो के एसेज हैं और उसके बाद मैक्रो के एसेज हैं. ठीक, so you have to do one each. In our discussions, we'll try to solve all of them. Since we've done the recent ones and we're moving backwards, you will observe a lot of repetition is going to be taking place. So I will sort of like go a little more faster. जो case study आया है, every time the case studies are really good. As a teacher, even like when I'm teaching and we're looking at like case studies from like maybe 10 years ago or 5 years ago, when you read those, the current economic situation makes a little sense sometimes because, you see, you tend to forget what had happened in the past, but sometimes, something to with relation to some country, they might, you get to read what was happening then, maybe 5 years ago, maybe 10 years ago, and you see how things have actually turned out, you know. Like, for example, one of the uh, really nice case studies that I have come across was that how Japan and USA was worried that, because for cheap labor, they're moving their technology to China, and they were worried that this can actually do like a transfer of technology to the Chinese, and अभी तो वो हमारे लिए products बना रहे हैं, but कल को they might become more innovative and things like that. Now this is a very old case study that I'm talking about, and come today we can see that it actually worked. um, so even when you're doing these exams and the questions you have, so sometimes they give like examiner reports. You can look at the examiner reports. Usually, examiner reports sort of like they do like percentages. Usually, MCQs के अंदर it's much more relevant. But अगर पेपर टू के अंदर भी मिल जाती है तो of course it gives you a little insight to the examiners. But हर पेपर टू की एग्जामिनर रिपोर्ट शायद होगी भी नहीं. इफ इट इज यू कैन रीड इट. अभी रिसेंट की तो नहीं आई होगी, पर पुरानी वाली होंगी. तो सिंस वी आर मूविंग बैकवर्ड, 2023 का पेपर है, तो ऑब्वियसली जो आर्टिकल है उससे 2 साल पहले या कम का होगा. तो 2021 वी वर कमिंग आउट ऑफ कोविड. तो यहाँ पे कोविड रिलेटेड अब कुछ हम जैसे बैकवर्ड जाएंगे, यू विल सी अ लिटिल मोर ऑन द कोविड रिलेटेड स्टफ. The COVID-19 pandemic had a very significant role in the global economy of 2020. We all know that, right? Basically, negative economic growth की pretty much all major economies, क्योंकि सब कुछ बंद था. डिमांड भी गई हुई थी, ट्रेड भी नहीं हो रहा था, रॉ मटेरियल्स भी नहीं मिल रहे थे. The speed, unexpected, and unprecedented nature of the downturn has been devastating for businesses, government, and population. इंडिविजुअल इकोनॉमीज रिएक्टेड टू द पैंडेमिक डिफरेंटली. हर इकोनॉमी के अंदर एक डिफरेंट सीन था. ठीक है, पाकिस्तान वाज अमंग द फ्यू हु रिकवर्ड वेरी क्विकली. चिली रिकवर्ड वेरी क्विकली, चाइना रिकवर्ड वेरी क्विकली. Egypt was one of the ones that recovered very quickly. So नीचे एक टेबल दिया हुआ है. लेट्स टेक अ लुक एट द टेबल. टेबल के अंदर क्या हो रहा है, फोर इकोनॉमीज के बारे में है. यू हैव द चाइना, यू हैव साउथ कोरिया, यू हैव यूनाइटेड स्टेट्स, you have UK, and these dotted lines are OECD, Organization for Economic Cooperations and Development की एक एवरेज दी हुई है. ठीक है, तो OECD के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं ये उसका एवरेज है. इफ यू नोटिस ओवर हियर, व्हेन आई सी ये
एवरेज के ऊपर एक दो तीन कंट्रीज जो हैं वो एवरेज के ऊपर हैं, एक एवरेज से नीचे है। ये किसका है? ये एनुअल रेट टू क्वार्टर जीडीपी है। राइट, तो जीडीपी किस तरह से क्वार्टरली मूव की है बेसिकली 2020 के अंदर। So what we observe is that UK had a very negative, like that's pretty seriously bad, like -21. That's a bad direction. जो पहले क्वार्टर के अंदर मैसिव फॉल, वैसे तो फॉल इन तीनों के अंदर हुआ है, लेकिन इनके जो फॉल है वो रिलेटिवली कम है। यूके का बहुत ज्यादा नेगेटिव फॉल है, एवरेज से भी नीचे का फॉल है। फिर उसके बाद आई सी दैट द पैटर्न इज वेरी सिमिलर ना, बहुत सिमिलर है। इसके अंदर यहाँ ऑलमोस्ट स्टेबल हुआ है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ ऑलमोस्ट स्टेबल है एज कम्पेयर टू दैट। बट चाइना एक अपनी ही दुनिया में चल रहा है, जहाँ सब नीचे जा रहे हैं चाइना इज गोइंग अप। जहाँ बाकी सब ने रिकवर किया है तो चाइना की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन तो हुई है, राइजिंग बट स्लो डाउन हुई है। ओके जी। फिर वो कहते हैं कि जी चाइना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एक एक्सेप्शन है। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसको पैंडेमिक हिट हुआ था। इट वाज द फर्स्ट जो रिकवर भी हुआ है रिसेशन से। टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी एक दो टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स अगर कोई इकोनॉमी का ग्रोथ रेट गिर जाए तो उसको आप रिसेशन कह सकते हैं या नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं। The Chinese government was quick to enforce lockdowns to limit the pandemic, and there was rapidly increasing demand for exports for वो जो हम नहीं पहन रहे थे जो कोविड के दौरान जो बहुत ज्यादा मास्क और पूरी पूरी कवरेज थी, पीपीई वी कॉल्ड इट, एंड चाइनीज रिलेटेड गुड्स की सर्टन डिमांड थी। वैसे तो पोर्ट्स बंद थे, लेकिन आई गेस इमरजेंसी गुड्स के लिए फिर भी पोर्ट्स ओपन थे। Then they're talking about South Korea was a little different. Like China, the impact of pandemic was more effectively contained, okay, for them also. और उसकी भी जो जीडीपी है वो उतनी ज्यादा बुरी हर्ट नहीं हुई है। बट वी कैन सी कि कोरिया के numbers have fallen down, right? Let me see ऊपर Korea के numbers. Korea's numbers are these ones. So they did mildly, it fell, it went into negative, but then it started recovering, but it is still below zero, right? It is recovering, but it is still below the zero. That means negative economic growth rate ही है। ठीक है। um, the impact of the pandemic was more effectively contained than in other economies, and growth in South Korea's economy was less effective. There was, however, little evidence in the data that by the end of 2020, South Korean economy would recover to its pre-2019। तो 1919 के अंदर पॉजिटिव में था, तो यहाँ कोई खास एविडेंस हमें नजर नहीं आ रहा कि इट विल गो अबव इट। ओके। The economies of the US and UK had negative quarterly economic growth throughout 2020. Economists in these countries have disagreed about how best to increase the rate of economic growth rate. You know the policies, right? Economic growth बढ़ानी है तो usually we resort to the demand side policies. The government of both countries introduced very high government spending programs. High government programs mean that they are going for fiscal policy, right? To encourage the return to economic growth in 2021. However, monetary policies have been widely promoted by many economists as an alternative to more traditional fiscal measures. All right. So, for this one, I hope you know what monetary policy is. I hope you know what fiscal measures they're talking about, the government spending and the taxation. ज्यादातर Keynesians prefer that, but आप कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी भी अच्छी है, ट्राई तो करो। सप्लाई साइड पॉलिसी भी ऑब्वियसली इज वन ऑफ योर पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को कंसिडर करते हैं, which also can include your exchange rate in a way,
क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट कम करने से आपका एक्सचेंज रेट हर्ट हो जाता है, राइट? यू रिमेम्बर दैट, राइट? तो नीचे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स के लिए। पहली बात जो आपने नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बतानी है कि ऑब्वियसली जो आपका आउटपुट है, कंट्री का जो आउटपुट है, वो डिक्रीज हो रहा है, राइट? दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू राइट, that there is a fall, decrease, reduce, whatever in output या आपकी GDP, right? So there's a drop taking place in that, right? So they both mean the same thing. वैसे तो ज्यादातर हम आउटपुट या इनकम की बात करते हैं, दोनों की बात कर सकते हो। एंड मेरे ख्याल के अंदर इसके अंदर आप ये भी कह सकते हो कि द कंट्री विल एक्सपीरियंस ए नेगेटिव GDP या नेगेटिव ग्रोथ रेट। वो बल्कि नेगेटिव ग्रोथ रेट तो ही पूछा है उन्होंने। So negative growth rate means that your GDP is going to fall, is going to go into negative, which basically means that the output or the incomes in your country is falling. एक एक मार्क मिल जाएगा दोनों बातों पे। Which country has shown in figure 1.1 experienced the most severe recession? Justify your answer. Justify मतलब कि फिर उसके पीछे कोई लॉजिक रीजनिंग कुछ इस तरह की। तो आउट ऑफ ऑल फिगर 1.1 के अंदर जो वर्स है, आप कह रहे हैं कि भाई यूके जो है वो वर्स है, 8 मार्क्स तुम्हारे को इस पे मिल जाएगा। अब जस्टिफाई करें कि व्हाई दिस एंड व्हाई नॉट द अदर्स, यू कैन से कि इट हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज फॉल, या फिर मेरी नजर के अंदर तो दिस इज द ओनली वन विच इज बिलो द OECD एवरेज, राइट? तो क्योंकि 2 मार्क्स ही हैं तो ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं लिखने को, तो आई थिंक दैट वुड बी गुड इनफ। उसके बाद state two likely economic reasons why China experienced strong economic growth starting in the second quarter of 2020, and consider which of these likely to have generated the greater. So you have 1 mark for an evaluative statement, ठीक है? And up to 3 मार्क्स ही नजर आ रहा है कि यू वुड वांट टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन स्टेट टू लाइकली रीजंस लिखा है, कंसिडर भी लिखा है, तो कंसिडर तो करना पड़ेगा। तो 2 रीजंस को आपने एक्सप्लेन करना है। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस वाज मेंशन्ड ओवर हियर कि चाइना भाई एक्सेप्शन चल रहा था। क्यों एक्सेप्शन चल रहा था? बिकॉज इट वाज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने अपने आप को सबसे पहले रिकवर किया। तो मैं तो आर्टिकल को सबसे पहले लिस्ट डाउन करूंगा फ्रॉम माय फॉर द रीजंस कि it was one of the countries जो कि quick था, and one of the reasons for that quickness could have been we have seen that there is an increase in the demand for exports. Uh, Sort of like you could like use this to explain, okay? Uh, you should get up to 2 marks for writing these two things, right? Just simply like stating, because it's worth a mark. I would say this is worth 1 mark. This should be worth another mark. क्योंकि 2 रीजंस की बात की है ना, तो ये वैसे एक ही रीजन है। तो आई विल गिव लाइक 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। बस एक रीजन क्या है, उन्होंने लॉकडाउन जो है उसको क्विकली लॉकडाउन को खत्म किया, पैंडेमिक को रिकवर किया, और फिर अपने गुड्स बाहर मुल्कों में बेचना शुरू कर दिया। दिस इज लाइक वन बिग पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ नीचे से मिल जाता है कि देर सेइंग कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्पेंडिंग प्रोग्राम्स कर रही है। तो यू कैन सी दैट देर इज अ फिस्कल पॉलिसी, एन एक्सपेंशनरी fiscal policy that the government is going for, an expansionary government fiscal policy जिसमें वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का सहारा ले रहे हैं, which will cause the AD to rise and economic growth to increase. The thing is, because क्वेश्चन में कंसिडर का हिस्सा लिखा हुआ है,
तो दो पॉलिसीज को अगर मैं फुली तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, तो आई विल नॉट गेट 4 मार्क्स, बिकॉज कंसिडर करने का मकसद क्या है कि आपने कंसिडर करना है which of these reasons are likely going to have the greatest increase. Now, that is what the question is saying over here. Which of these are likely to have generated the greater rate of growth? All right. कौन से वाले का? जरा जाके डेटा पे पीछे देखते हैं। पॉलिसी जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं एक वक्त लगता है उसका इफेक्ट आने में, राइट? ये जो शुरू का इंक्रीज आया है Q1 के अंदर, दिस कैन नॉट हैव कम बिकॉज ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। मेरी नजर के अंदर, while the world is in a lockdown, them coming out of lockdown and a really rising demand for this and the Chinese product gave them the success. मुझे तो पर्सनली मेरा ये गेन है, बिकॉज इन माई इवेल्युएशन आई वुड हैव रिटन समथिंग अलोंग द लाइन। मैं तुम्हें मार्किंग स्कीम भी दिखा देता हूँ, मार्किंग स्कीम इज नॉट सो वेरी हेल्पफुल इन दिस वन। तो प्लॉजिबल रीजंस कुड इंक्लूड, एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज हो रहा है, कोविड से पहले रिकवर किया उन्होंने, तो एक ये दोनों का मिला के 1 मार्क होना चाहिए। सक्सेसफुल गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर फिस्कल पॉलिसी के बारे में उन्होंने लिखा है, मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट की है, आई डोंट नो इम्प्लीमेंट की है कि नहीं की है। देर आस्किंग टू लाइकली रीजंस व्हाई दे हैव कम आउट ऑफ इट। मुझे नहीं पता कि मॉनेटरी पॉलिसी लगाई है कि नहीं लगाई है, फिस्कल तो जरूर लगाई है। तो मैंने फिस्कल का सहारा लिया है इधर कि किस तरीके से उस फिस्कल पॉलिसी की वजह से एडी बढ़ेगा। मैंने अपनी एंड पे एक्सप्लेनेशन कर दी है उसकी। अप टू 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई वन ऑफ द स्टेटेड रीजन इज लाइकली टू हैव जनरेटेड द ग्रेटेस्ट। तो बेसिकली मुझे जो कंसिडर करना है वो ये करना है, कंसिडर विच ऑफ दीज हैव जनरेटेड अ ग्रेटर इम्पैक्ट। तो मेरी नजर में द फर्स्ट टू रीजंस आर मोर। So I would say something like that. So in evaluation, uh, China coming out of the lockdown and exporting due to rising demand has generated a higher GDP growth rate while the world was shut down. So they made good business. Or here, obviously, fiscal policy has a time lag, so it would not have had an impact like in Q1, right? Oh, बल्कि they're asking for increased economic growth rate starting in the second quarter of 2020. तो अगेन मुझे तो फिजिकल में अगेन कोई बहुत बड़ा शार्प इंक्रीज आया नहीं है। इट कुड हैव बीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, के देम ओपनिंग टू द वर्ल्ड अलोंग विद फिजिकल पॉलिसी विद अ टाइम लैग। तो इसकी वजह से बहुत ही माइल्ड सा इंक्रीज आया है। डी के अंदर then they go on and say, let's take a look. Assess assess how economic recovery is likely to have affected employment and price stability in China. 6 marks है. I'm looking at 2 marks for employment and price stability के ऊपर impact. Economic recovery has likely to affect employment and stability. I think what we should be doing is uh, 2 mark as to how it has affected, 2 marks for some sort of like a counter that maybe it may have had impacted like the other way, and then 2 marks for the evaluation. Remember the same pattern that we're doing. So पहली बात तो जब इकोनॉमिक रिकवरी होगी तो आपका जो पहला मार्क का जो डिस्कशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए फॉर 2 मार्क्स, कि जब इकोनॉमी रिकवर करेगी तो ऑब्वियसली CIGX-M में इंक्रीज आएगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज आएगा। और जब एग्रीगेट डिमांड के अंदर इंक्रीज आएगा तो आपको पता है डायग्राम के थ्रू, यू डोंट नीड द डायग्राम, दे हैवंट आस्क्ड फॉर द डायग्राम,
Basically economic growth will go up which will cause the employment to rise। तो मैंने एक तो एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर दिया कि देखें जी उसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या ताल्लुक होगा। दूसरा, आ, दो बातों की तरफ जा सकते हैं। एक तो ये है कि एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस के ऊपर जो है आई विल सी अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन का प्रेशर। राइट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का आई वुड सी अ प्रेशर ऑफ दैट। इकोनॉमिक ग्रोथ, जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसके पीछे इन्होंने रीजंस बताए थे और हमने लिखे भी थे। एक्सपोर्ट का बढ़ना, राइजिंग डिमांड, चाइनीज प्रोडक्ट्स का राइजिंग डिमांड, एक्सपोर्ट्स गोइंग अप प्रोबेबली, डिमांड फुल इन्फ्लेशन। आई थिंक यू कैन फॉर काउंटर आई एम थिंकिंग कि प्राइस स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो मेरी नजर के अंदर इफ यू रिमेम्बर जब हमने एक दफा पहले भी बात की थी कि देखें जी जब एडी बढ़ता है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी तो आपने देखना है कि एडी का जो राइज है वो एएस के राइज से ज्यादा है। तो फिर प्राइस लेवल्स के अंदर इंक्रीज आएगा। क्योंकि अगर ए प्राइस बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर चली गई तो फिर इन्फ्लेशन आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो गिरेगी नहीं। एग्रीगेट सप्लाई जब लेफ्ट की तरफ जाता है तो दैट इज समथिंग यू कैन ऑल्सो डिस्कस। मेरी नजर के अंदर तो यहाँ पे बात हो जानी चाहिए थी कि आप एडी का इंक्रीज और एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज की बात करें और फिर प्राइस को क्या होगा। प्राइस को भी तुम बात कर सकते हो कि एडी में जो इंक्रीज आया वो है या एएस के अंदर अगर किसी किस्म का इफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है। बट द इम्पैक्ट रियली डिपेंड्स ऑन कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जब रिकवरी हुई है तो ऑब्वियसली आप रिसेशन के अंदर हैं। तो जब इकोनॉमिक रिकवरी हुई है तो वो किस हद तक हुई है, कि क्या वो ऐसी हुई है कि छोटा सा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में इंक्रीज आया है जिसकी वजह से कोई खास आपका इंक्रीज तो क्रिएट नहीं हुआ है। आई थिंक दिस इज अ बैड डायग्राम फॉर दिस वन। बिकॉज इसके अंदर फिर मुझे ये बात करनी ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन के अंदर थी। तो क्योंकि वो रिसेशन के अंदर थी तो दिस वुड नॉट बी अ गुड आइडिया टू मेक बाय द वे। बिकॉज आपको पता है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हो। द आइडिया, अगर बहुत ही तुम चाहते हो कि तुम उस आइडिया को डिस्कस करो तो आई थिंक व्हाट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट इज कि इमेजिन इफ दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड नाउ। डिपेंड इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी डिपेंड्स ऑन द आइडिया कि कितना बड़ा या कितना छोटा इंक्रीज आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो उसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा बड़ा इंक्रीज आएगा कि प्राइस में ज्यादा बड़ा इंक्रीज आएगा। Right? So that could have been your evaluative statement. Something to do with the size of the shift, size of economic recovery। अगर बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है तो एडी में बड़ा इम्पैक्ट आएगा and that might cause inflation to kick in also, right? लेकिन छोटा सा माइल्ड इंक्रीज इकोनॉमिक रिसेशन आएगा तो हो सकता है कि प्राइस में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आए, ज्यादा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट में ही जनरेट हो जाए। तो दैट इज a reasonable discussion to make over here। ठीक है। फिर उसके बाद assess whether monetary policies are the best way for high income countries। I'm sure कि तुम्हारे दिमाग में आया होगा ओ ये तो बेस्ट लिखा हुआ है तो मुझे दोनों पॉलिसीज कोई एक और पॉलिसी को भी डिस्कस करना चाहिए। लेकिन रिमेंबर ये केस स्टडी का 6 मार्क का क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर आर्ग्यूमेंट के 2 मिलेंगे, अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट के 2 मिलेंगे। तो 4 मार्क तो यही हो जाते हैं। तो दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव पॉलिसी जो है ना वो एवेल्युएशन के अंदर जाएगी। हो गए। ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे 6 मार्क में से 4 मार्क के अंदर जो है वो तुमको ऑल्टरनेट पॉलिसी का भी दे दें। सो मार्क्स कम है। 8 मार्क होता तो आई वुड हैव सेड कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है।
3 3 और 2 करके ब्रेक डाउन है, तो उस तरीके से आपको करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द बेस्ट वे फॉर अ हाई इनकम कंट्री। थोड़ा सा आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट अ हाई इनकम कंट्रीज ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग आवर एटलीस्ट इवैल्यूएशन में, तो जरूर फैक्टर इन करो। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो चीजें होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर यू हैव द मनी सप्लाई एंड यू हैव द इंटरेस्ट रेट। अगर इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालना है तो आपने एक्सपेंशनरी पे जाना है, जिसके अंदर जब आप इस तरह से करेंगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज और इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज, तो इनफैक्ट इससे ये भी हो सकता है कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो भी गिर जाए। राइट, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक्सचेंज रेट यूजली गिर जाता है, बिकॉज बाहर से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, व्हाट वी आर going to see is an increase in borrowing. The credit markets are going to increase. There's going to be more borrowing. And CNI की वजह से AD के अंदर increase आएगा। तो दो मार्क के लिए I can talk about how the monetary policy is going to have an effect. But then I have to make a counter argument for 2 marks that monetary policy might not work as effectively. तो we've done this in the past also. मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस है। नंबर वन, आपका एक टाइम लैग का इशू है कि जब आप पॉलिसी प्रॉब्लम रिकग्नाइज करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, it takes time for it to happen. It doesn't happen in 1 quarter. It takes a reasonable amount of time. दूसरा भी इवन टॉक अबाउट कि जब आप ये पॉलिसीज एडी बढ़ाते हैं तो ये थोड़ी सी इन्फ्लेशनरी है नेचर के अंदर। राइट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज गोइंग टू क्रिएट। तो ये मेरे 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट्स अच्छे हैं काउंटर के। तुम और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो कि एक्सचेंज रेट जो है वो गिर जाएगा, उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, एनी ऑफ दैट। तो बात यह है कि इज इट द बेस्ट पॉलिसी और नॉट। आपने दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, इसकी वजह से हाँ जी इकोनॉमिक ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट आएगी मैक्रो एस्पेक्ट पे, लेकिन इन्फ्लेशन और टाइम लैग का भी इशू है। तो इन इवैल्यूएशन मेरी नज़र के अंदर दिस इज व्हाट यू कैन राइट के इन इवैल्यूएशन जब आप इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं तो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स कितना बड़ा रिस्पॉन्स देते हैं उसको। इफ यू लोअर द इंटरेस्ट रेट, क्या बहुत मैसिवली बोरोइंग होती है कि नहीं होती? बाय द वे, इसको आप इंटरेस्ट इलास्टिक भी कह सकते हैं, वेदर द डिमांड इज इंटरेस्ट इलास्टिक और नॉट। ठीक, तो आप यू कैन टॉक अबाउट दैट विद वन ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हो कि गवर्नमेंट कुड हैव यूज्ड सप्लाई साइड पॉलिसीज आल्सो, जिसकी वजह से अगेन शॉर्ट रन में इट डजंट वर्क इफेक्टिवली, बट इन द लॉन्ग रन इट इज मच मोर ऑन द डिजायरेबल साइड। राइट, तो ये हमारा हो गया। So for this one, 2A, again the question is on elasticity. तो खास तौर पे जब PES के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, the question says the price elasticity of supply for a new smartphone is estimated to be 0.8 in the short run and 1.8 in the long run. So they have given us a number. Obviously, there has to be a reason as to why they are suggesting that. और आपने अब अपने 8 मार्क को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? 3 मार्क्स फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, 3 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड 3 मार्क्स फॉर इवेल्युएशन। ठीक है, तो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर अ न्यू स्मार्ट, अच्छा एक्सप्लेन क्या करना है? एक्सप्लेन what these estimates mean for producers and consumers of smartphone and consider why the estimates might differ. तो पहली चीज, पीईएस लिखा है तो मेरी नजर में पीईएस को आपको डिफाइन कर देना चाहिए। डेफिनेशन क्या है? पीईएस मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। साथ ही में फॉर्मूला भी लिख लिया करो। अच्छा है क्या? कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज चेंज इन प्राइस
फिर जब यहाँ तक करते ही हो तो पीईएस ग्रेटर देन वन और लेस देन वन का मतलब भी बता दिया, right? Not too lengthy, just to give an idea that by how much the percentage change in quantity supply will happen due to the change in the price. So there's going to be a larger change in that case, and there's going to be a smaller change in this case. बट मेन हमें जो एक्सप्लेन करना है वो इन वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर करना है। तो इस वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट के अंदर व्हाट वी नो इज के शॉर्ट रन के केस के अंदर इनइलास्टिक है, राइट? जहाँ वैल्यू 0.8 है, लेस देन 1 है, so that means it's more inelastic. That means with the change in the price, the change in quantity supplied will be lesser. And long run के अंदर जो है, because it is 1.8, so it is elastic. That means there's going to be much larger change in the quantity supplied due to change in price. ये तुम्हारे 3 मार्क्स के लिए हैं। अब ये सारी चीजें लिखो। Hopefully you will get the 3 marks for knowledge understanding. अगर मैं तुमको मार्किंग स्कीम दिखाऊं तो मार्किंग स्कीम के अंदर आई हैव एन इशू हियर। अगेन ये पुरानी मार्किंग स्कीम है लेकिन है एग्जामिनर की ही। मीनिंग ऑफ पीईएस 1 मार्क दे रहे हैं, फॉर्मूला का 1 मार्क दे रहे हैं, explanation of what is meant by elastic and inelastic based on the responsiveness of changes in supply to changes in price, जो हमने फॉर्मूला में लिखा है लेकिन कोई एप्लीकेशन नजर नहीं आ रही। जैसे लिखा है ना, एक्सप्लेन व्हाट दीज एस्टिमेट्स मीन फॉर प्रोड्यूसर्स, मार्किंग स्कीम के अंदर कोई उसका यूज नहीं किया हुआ इन्होंने। बट मेरी नजर में यू शुड डू इट, यू नेवर नो, किसी मार्किंग स्कीम के अंदर दे माइट आस्क यू के 0.8 और 1.8 को करना चाहिए था। दैट इज, आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट एज an analysis, but you could consider why the estimates differ। एस्टिमेट अलग क्यों है? अब बात यह है कि आपने कहा कि शॉर्ट रन के अंदर जो है वो इन इलास्टिक है और लॉन्ग रन के अंदर इलास्टिक है। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इज कॉजिंग दिस टू बी डिफरेंट, राइट? शॉर्ट रन के अंदर अगर आप कहते हैं कि अगर आपके पास यू डोंट हैव अनअवेलेबल स्टॉक, ओके, या इट टेक्स लॉन्ग पीरियड टू प्रोड्यूस अ गुड, इट टेक्स टाइम फॉर अ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, या फिर आप कहते हैं कि यू डोंट हैव मच टाइम ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट रन का ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो दीज वुड बी द रीजंस एज टू व्हाई दे वुड बी inelastic। Elastic के अंदर you could say you have plenty of stock available, it takes less time to produce, right? तो इस तरीके से आपने ये कर दिया। And then finally for your evaluation, um, what are they saying? An assessment as to why the impact on consumers and producers may differ according to. A second, let me go back to the question. And consider why the estimates differ. Uh, Consumers and producers की बात की हुई है. What it means, what these estimates means for the producers and consumers of the smartphone, and why these estimates differ. So I've sort of like suggested one evaluation for it. Take a look at it. So in evaluation, like I said, always start like this. अच्छा है, examiner को पता होगा. These different PS values have different consequences for consumers and producers in the short run. Supply inelastic है, ये हमने अपने analysis में ही बताया है. So due to rise in the demand, will most likely cause the prices to go up rather than increasing output. अगर मैं तुमको, क्योंकि आप सबको डायग्राम ज्यादा अच्छे से याद है, सप्लाई इलास्टिक इस तरह से इनइलास्टिक होती है, और जब अगर आप डिमांड को इंक्रीज करेंगे और सप्लाई इनइलास्टिक है, तो वी नो दैट फॉर द कंज्यूमर द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज अप मच मोर फास्टर, राइट? एंड जो क्वांटिटी जो इंक्रीज आ रहा है वो रिलेटिवली इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आएगा, वो बहुत ही माइल्डली इंक्रीज आएगा। तो ये बात हो गई।
For producers, inelastic supply may limit their revenue gains in the short run because they cannot sell many more units, क्योंकि जब बना ही नहीं सकते तो बेचारे बेचेंगे कैसे। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो है सप्लाई इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और गेट मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक द सप्लाई। यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से वी हैव टू फैक्टर इन एवरी सिंगल बिट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल था। दूसरे वेरिएंट का है, आई थिंक हमारे वेरिएंट में पीएस पे आ चुका है वैसे तो क्वेश्चन, but in comparison to something else, you should always be prepared for it. फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वही स्मार्टफोन को लेके चल रहे हैं। आई थिंक इन द मिडल ऑफ द ईयर वी हैव एक्चुअली डन दीज क्वेश्चंस आल्सो। सिंपल सा क्वेश्चन है, assess whether knowledge and understanding of PED or XED is more likely to be useful for a smartphone producer. आंसर किस तरीके से होगा? सबसे पहले आपने एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया इसके ऊपर, राइट? पीईडी के ऊपर एक बहुत ही माइनर सा ब्रीफ, कुछ ज्यादा नहीं, जस्ट सिंपली व्हाट इट मींस। फिर जो स्मार्टफोन प्रोड्यूसर है उसके लिए तो असल में सारी बात यह है कि रेवेन्यू के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या करनी है। तो वी वांट एन elaborate पैराग्राफ ऑन यू प्रपोजिंग कि इलास्टिक डिमांड है तो दे शुड लोअर द प्राइस एंड दैट विल कॉज देयर रेवेन्यूज टू राइज। लेकिन अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो दे शुड रेज द प्राइस एंड दैट विल कॉज देयर रेवेन्यूज टू गो अप। ठीक? तो ये आपका एक साइड का प्रो आर्ग्यूमेंट हो गया। देन यू डू द लिमिटेशन ऑफ पीईडी। वीव टॉक्ड अबाउट पीईडी की लिमिटेशन, आई थिंक वन ऑफ द लास्ट क्लासेस के अंदर भी, दैट वी सेड भाई एरर्स हो सकते हैं, ऑब्सोलीट हो सकता है, something like isolation में it's not a very good policy to see सिर्फ PED is not usually important, even like YED and PES, these are also important, so you have to look at all these things। inaccuracy हो सकती है, टाइम का इशू हो सकता है। then I want you to talk about the cross elasticity of demand। अच्छा, by the way, when you're doing this analysis, स्मार्टफोन को किसी तरह से अगर फैक्टर इन कर सकते हो तो जरूर करो। From elastic and elastic point of view, like Apple would be highly elastic compared to maybe Samsung, yeah, basic phones versus the smartphones। तो if you can, basic, ये लोग तो स्मार्टफोन के प्रोड्यूसर और स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। तो if people assume it, if it takes a large proportion of income or a small proportion of income, तो उसकी वजह से जो है इलास्टिक इन इलास्टिक में फर्क आ सकता है। उसके बाद क्रॉस वेलोसिटी का आपने डेफिनेशन देना है। क्रॉस वेलोसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? दैट हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड ए विल चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ बी। ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट रियल लाइफ, एब्सोल्युटली यू शुड टॉक अबाउट रियल लाइफ, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। एक्सईडी और वाईडी के अंदर आपको पता है यू आर स्टडिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, राइट? सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बीच में आपकी स्टडी होती है। तो जब आप सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स में देखते हो तो सब्स्टिट्यूट्स आर बेसिकली योर रिप्लेसेबल गुड्स, और रिप्लेसेबल गुड्स जो होते हैं वो आपका राइवल होता है। अब राइवल की स्ट्रैटेजी, इफ राइवल रिड्यूसेस द प्राइस, then you know that you're going to lose the demand, so you need to come up with a strategy to deal with that। So I think that can be a very, from the producer's point of view, that can be a very smart thing to know। Maybe if your competitor is launching the new phone, then you can expect a ripple effect on you। फिर कॉम्प्लीमेंट्स से भी तो फर्क पड़ता है ना। कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं, लाइक स्टफ लाइक एयरबड्स और ये चीजें हो गई। कंपैटिबिलिटी होगी एयरबड्स के साथ, तो ऑब्वियसली जो है लोग ज्यादा उसके खरीदना चाहेंगे। So that would be the usage, and then we want you to go for the limitation। limitation वही उसी तरह की ही है, कोई खास इसके अंदर डिफरेंस तो नहीं हो सकता। but you have to talk about that there are other elasticities that you should consider also। and
इसके अंदर भी जो आपकी जो मेजरमेंट है उस कॉस्टली हो सकता है, इनएक्यूरेट होता है। इनएक्यूरेसी का रिलाय का इशू क्यों है? बिकॉज जो डेटा है, डेटा जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आ, कि राइवल ने जब इतना प्राइस में चेंज किया तो हमारे पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आया, राइवल ने नया लॉन्च किया प्रोडक्ट तो कितना इम्पैक्ट आया। तो ये थोड़ा सा जो है ना, दिस वुड बी अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट? So you basically talked about two elasticities. That's always good enough. You don't have to introduce a third one. थर्ड भी मैं इस एस्पेक्ट में कर रहा हूँ कि देखें जी, आप जब सिर्फ एक्सटीडी को नहीं देख सकते हो, यू हैव टू लुक एट पीईडी, यू हैव टू लुक एट पीएस, यू हैव टू लुक एट वाईईडी। तो जब आप पीडी को आइसोलेशन में देख रहे हैं तो मैंने मेंशन किया कि भाई आप एक्सटीडी, वाईडी, पीएस इन सबको भी देखेंगे। आइसोलेशन के अंदर इनको देखना इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है। आपने, अब मैं इनफैक्ट मार्किंग स्कीम में बड़ा एक अच्छा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है इधर, लेट मी शो दैट, वन सेकंड, या दिस वन राइट हियर। इफ लिमिटेशन ऑफ ओनली वन मेजर आर एनालाइज, देन L3 मिड पॉइंट आप दे सकते हैं मैक्सिमम। इफ ओनली वन मेजर इज एनालाइज विद नो रेफरेंस टू स्मार्टफोन, देन सिर्फ लेवल 2। मतलब अगर आपने सिर्फ पीईडी की फंक्शन बताया, यूजेज बताया, आपको मैं लेवल 1 दे सकता हूँ, या लेवल 2 का अपर साइड, एक लोअर साइड दे दूंगा, 3 मार्क दे दूंगा। अगर आपने पीईडी की दोनों साइड लिख ली तो मैं आपको लेवल 2 दे सकता हूँ मैक्सिमम। अगर आपने पीईडी और एक्सटीडी को बता दिया और सिर्फ पीईडी की लिमिटेशन लिखी है तो फिर मैं लेवल 3 का आपको लोअर साइड पे दूंगा, मिड टू लोअर साइड। फिर अगर तुमने दोनों की फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट दे दी तो फिर लेवल 3, मिडवे और हाफ अबव के ऊपर मैं तुमको मार्क दे दूंगा। अगर स्मार्टफोन को कोई रेफरेंस नहीं दिया तो मैं तुम्हें लेवल 2 से ऊपर नहीं दे सकता। तो स्मार्टफोन का रेफरेंस किसी तरह से बस स्मार्टफोन ही लिख देना यार, बस, एंड यू विल बी फाइन। देन द क्वेश्चन वाज कि तुमने फाइनल असेसमेंट करना है कि पीईडी के वाईडी इज मोर यूजफुल टू द प्रोड्यूसर। मेरी नजर के अंदर देखें जी, पीईडी जो है ना, और वाईडी, ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर कितनी क्लोज कंपटीशन है। अगर आप बहुत ही एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर हैं तो एक्सईडी कैन रियली मैटर फॉर यू। ओके। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐसे प्रोडक्ट है कि यू डोंट वरी अबाउट योर कंपटीशन, तो फिर देन यू, फॉर यू एज अ प्रोड्यूसर, यू आर मोर इंटरेस्टेड इन योर रेवेन्यू, कि भाई मैंने रेवेन्यू कमाना है, प्राइस बढ़ाऊंगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा वो डिपेंडेंट है। लेट मी सी इफ आई हैव एन एवेल्युएटिव स्टेटमेंट फॉर यू गाइस हियर। देखते हैं। या राइट, या। तो इन एवेल्युएशन पीडी एंड एक्सपीडी दोनों एक अच्छा टूल्स हैं फॉर स्मार्टफोन प्रोड्यूसर्स। पीडी इज मोर helpful for setting the price of the smartphone itself. If a firm wants to maximize revenue, so obviously pricing lower and higher makes sense. लेकिन अगर आप बहुत ही कोई competitive इकोनॉमी के अंदर हैं, competitive स्ट्रैटेजी और पोजीशनिंग चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर एक्सईडी आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो सकता है। बट रिमेंबर, however, both PD and XCD should not be used alone. You should even consider YED. तो बेसिकली इवैल्यूएशन के अंदर हम कह रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे तो बेहतर रिजल्ट निकलेगा। ठीक हो गया? तो दैट्स हाउ आई विल आंसर this one. I remember doing this question with many of you. Explain why the provision of public and local rail mass transit services in cities is classified as a public good and not a, sorry, as a private good and not a public good. And consider why such services might not be provided by the private sector. Might only be provided by the private sector. I don't know what I'm reading. Right. So, how do you answer this? I think we should be like really, really well read in this.
पब्लिक एंड प्राइवेट वाली साइड, ऑब्वियसली the first thing that we should do for a question like this is जहाँ private और public की बात हुई भी है, तो I think we must talk about the excludability and the rivalry and all of that. ठीक है, that is our main thing here, right? तो इस केस के अंदर भी हम क्या करेंगे, we would want to explain these terminologies because they are important. तो पहले हमने समझा दिया भाई कि प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल होते हैं एंड राइवलरी होते हैं। इसको डिफाइन करना है ना, एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है, दैट नो वन कैन बी, दैट यू कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम यूजिंग द गुड वंस प्रोवाइडेड। फिर राइवलरी, if somebody uses the good that it does not finish for the others, then you want to do the same thing for the public good। I think एग्जाम्पल भी जरूर दिया करो, प्राइवेट गुड का कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के दे दो। क्या हो सकता है एग्जाम्पल, इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है ना, प्राइवेट के अंदर यू कुड से लाइक रेल सर्विस। फिर आप पब्लिक गुड की तरफ आते हैं, पब्लिक गुड के अंदर आप नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी को समझाएंगे ना। इवन जो एक्सक्लूडेबल राइवलरी को समझा दिया, यू माइट से कि फिर अब नॉन एक्सक्लूडेबल को क्यों समझाएं, भाई समझा दो यार, that no one can be stopped from consuming the good once provided, and non-rivalry means that if somebody consumes the good, it does not reduce for the others। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लग जाएगा ज्यादा। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट, हम लाइट हाउस स्ट्रीट लाइट्स इन सब की बातें करते हैं, चाहो तो एग्जाम्पल को यूज करते हुए नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरी को भी समझा दो। You basically for this, you're sort of like getting 1 mark, 1 mark, and for correct identification 1 mark. Understood? That's how you get it. A lot of times what kids do is that they do not clarify कि एक्सक्लूडेबल और राइवलरी जो ये लिख रहे हैं, ये पब्लिक के लिए लिखा है कि प्राइवेट के लिए लिखा है। वेरी ऑफन वी सीन किड्स एंड अप डूइंग दैट, बिला वजह 1 मार्क चला जाएगा कुछ एप्लीकेशन का वो था। डू यू हैव टू एक्सप्लेन, आदत डालो कि एक्सप्लेन करके ही अपनी वो टर्मिनोलॉजीज को समझा दिया करो, मेरे ख्याल में तो कर दिया करो। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर वैसे ही नीचे तुमको एनालिसिस के अंदर वो बात करनी ही है, तो हमारा वो वाला टास्क हमें समझ आ जाएगा वेदर यू कैन और यू कैन नॉट। तो फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हैं रेल एंड ट्रांजिट बस सिस्टम की, तो आप कहते हैं भाई ये वाले जो गुड्स है ना, ये गुड्स तो प्राइवेट है। क्यों प्राइवेट है? क्योंकि इसके अंदर एक्सक्लूडेबिलिटी का एलिमेंट है। एग्जाम्पल के साथ बता दो क्या एक्सक्लूडेबिलिटी के, टिकट खरीदोगे तो कंडक्टर है वो चेक करेगा तो तुम यूज करोगे, राइट? सो इट इज पार्ट ऑफ दैट। और फिर राइवलरी भी है। राइवलरी कैसे है भाई, एक बस के अंदर एक लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड सीट्स हैं, जब आप यूज करेंगे तो दूसरों के लिए ऑब्वियसली वो सीट जो है वो कम हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे जो बस और लोकल जो है वो पब्लिक गुड्स क्यों नहीं है। तो हम कहें कि अगर भाई ये पब्लिक गुड होते, हाँ अगर ये रेल पब्लिक गुड होता तो फिर तो आप चार्ज ही नहीं कर पाते इस पे, राइट? सो इफ यू कांट चार्ज, right, so you can't charge for it. So if you can't charge for it, then you have an issue of the free rider problem. And when you have the free rider problem, the private sector will not be interested in providing these goods. Do you understand how my line of thought is going over here? कि वो पब्लिक गुड क्यों नहीं है, तो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। वो पब्लिक गुड इसलिए नहीं है कि वो नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरी नहीं है। अगर वो नॉन एक्सक्लूडेबल होता तो यू कुड हैव नॉट बीन एबल टू चार्ज,
तो फिर अगर आप चार्ज नहीं करते तो यहाँ पे फ्री राइडर का प्रॉब्लम आ जाता। और अगर फ्री राइडर का प्रॉब्लम आ जाता तो कंसिडर, ये जो लिखा है ना इन्होंने, कंसिडर व्हाई सच सर्विसेज माइट ओनली बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो अगर ये वाला लाइन ऑफ थॉट होता तो फिर तो प्राइवेट सेक्टर ये गुड प्रोवाइड करता ही नहीं, राइट। एंड दे हैव आल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक सजेस्टेड दिस, थोड़ी सी वेग सा एनालिसिस का मार्किंग स्कीम है। And then assess whether a mass transit service might only be provided by the private sector। देखें जी, मास ट्रांजिट सर्विस है, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड कर सकता है, पब्लिक सेक्टर भी प्रोवाइड कर सकता है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट का सेक्टर है वो भी तो प्रॉफिट के लिए काम कर सकती है, वो भी तो चार्ज कर सकती है लोगों से। जैसे हमारे यहाँ ये सिंध गवर्नमेंट ने जो निकाली है द रेड बसेस, ये तो पब्लिक सेक्टर ने किया ना। तो मास ट्रांजिट सर्विसेज जो है वो प्राइवेट के साथ पब्लिक सेक्टर भी प्रोवाइड कर सकता है। दोनों चार्ज करेंगे, दोनों पैसे कमाएंगे, और दोनों काम करेंगे। लेट मी सी व्हाट आई हैव फॉर एन इवैल्यूएशन ओवर हियर। अच्छी इवैल्यूएशन है। इन इवैल्यूएशन, while mass transit systems are classified as private good, it is not always the case that they should only be provided by private sectors। इसको फर्दर ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ नॉन प्रॉफिटेबल रूट जहाँ ज्यादा लोग नहीं होते वहां पे वो तो नहीं जाएगा, तो फिर लोग तो महरूम हो जाएंगे, ये तो इनक्वालिटी का बाइस हो जाएगा। तो वी नीड द गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज और डायरेक्टली प्रोविजन सम अफोर्डेबल बसेस इन दोज एरियाज। एंड इवन व्हेन जो बसेस हैं, प्राइवेट सेक्टर माइट नॉट केयर अबाउट द पोल्यूशन एंड द इन्वायरमेंट, यू मे नीड द गवर्नमेंट टू डू इट, बिकॉज देखो मास ट्रांजिट सिस्टम है, they have serious emissions and they can have wider society issues। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम, एक सजेस्टेड मार्किंग स्कीम है इसकी। ठीक है, फिर हम आते हैं पार्ट बी के ऊपर। assess whether bus and rail system in cities should receive substantial subsidies for government। अब देखें जी, ये जो मास ट्रांजिट होता है, ये जब आप, ये ज्यादातर आप जो वेस्टर्न इकोनॉमीज में जाते हो ना तो वहां पे आप देखते हो कि मास ट्रांजिट क्या होता है। मास ट्रांजिट होता है जो आपकी बड़ी पॉपुलेशन को मूव अराउंड करने में असिस्ट करता है। जैसे आपके पास ये रेड बस का पूरा सिस्टम हो गया, दुनिया के अंदर लोगों के पास अंडरग्राउंड सबवेज का सिस्टम होता है, बस सिस्टम होता है, रेल आप हाई रेल सिस्टम्स होते हैं। तो जिसमें आपकी पॉपुलेशन मूव अराउंड करती है, ट्रांजिट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, राइट। तो शुड बी रिसीव सब्सटैंशियल सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट। अब आपने इसका आंसर क्या करना है भाई? पहले तो हमने बात करना है सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी क्यों देनी चाहिए, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस टू इट। सब्सिडी क्या होती है? सबसे पहले, सब्सिडीज आर फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन टू प्रोड्यूसर्स, in this case the rail mass transit system provider, to increase the supply, lower the price, you know। फिर उससे क्या होगा, कुछ एडवांटेजेस होंगे। ट्रांजिट सिस्टम तो आप एक तरह से मेरिट गुड कह सकते हो, लेकिन द गुड थिंग इज दैट पीपल इफ दे able to afford these, they can move between cities much more easy। ज्यादातर हमारे यहाँ भी क्या होता है, और ये मैंने इंडिया के केस के अंदर देखा था, इंडिया हैज अ वेरी बिग ट्रेन मैच सिस्टम। तो वहां पे लोग जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स के अंदर जमीनों के ऊपर अपना क्रॉप उगाते हैं तो वो शहर लाके बेचते हैं उसको। तो वो रेलवे सिस्टम को यूज करते हैं, बिकॉज फॉर समथिंग लाइक अ पेरिशेबल आइटम लाइक दिस they can't use buses or something that might take a bit too long maybe, or maybe costly। Rail आपको ज़्यादा cost effective पड़ता है, so a lot of people can come and sell their produces, and that will bring a welfare in their areas, in their remote areas। फिर आपको ये भी पता है मास ट्रांजिट सिस्टम होगा तो लोगों को गाड़ियां और ये रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो पोल्यूशन का भी मसला कम हो जाएगा, ट्रैफिक कंजेशन का मसला भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी वांट टू राइट सम एडवांटेजेस फर्स्ट, फिर उसके बाद वी वुड लाइक यू टू डू सम डिसएडवांटेजेस ऑफ इट।
ठीक है जी। there are some disadvantages we would like you to write about it. अब डिसएडवांटेजेस के अंदर ऑब्वियसली सब्सिडीज की क्या है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक मसला है, राइट? वी ऑलवेज राइट अबाउट दिस सब्सिडी का, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हो सकता है कि even though you've provided subsidies and these transit systems are there, people are still not interested because maybe it was very poorly spent by the government, right? Poor development of the transit. Like for example, ट्रांजिट सिस्टम यूजुअली क्या करता है कि लोगों को उनके घरों के, उनकी दुकानों के करीब लेके जाता है, राइट? उनके घरों और दुकानों तक नहीं पहुंचाता। अब आपने ग्रीन बस, रेड बस बनाई और आपने उनको मेन इत्तेहाद पे उतार दिया। अब जिस बंदे का घर जो है अंदर दो चार गलियां आगे पीछे है, तो अब वो किस तरह से वॉक करके जाएगा? दैट माइट बी अ प्रॉब्लम ऑल्सो, सो यू नीड लाइक अ स्मॉलर सिस्टम जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, राइट? यू कांट जस्ट डू दैट बिकॉज देन पीपल विल कंटिन्यू टू यूज देयर ओन पर्सनल कार्स एंड स्टफ। फिर अगर आप उसको एज अ मेरिट गुड कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर आप इंफॉर्मेशन फेलियर का पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो एब्सोल्युटली दैट वुड बी perfect way to go about it also. Are they saying they should? Okay, so should they not? आपने दोनों साइड को आर्ग्यू कर लेना है, और फिर फाइनली आपने एक एवेल्युएटिव स्टेटमेंट देनी है इसके ऊपर। मैं एवेल्युएशन स्टेटमेंट तुमको दिखा देता हूँ, सॉर्ट ऑफ। In evaluation, the usefulness of subsidy depends on the specific goal of the government and the condition of the transport system. पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, वहां तो बहुत सीरियस स्पेंडिंग हो जाएगी, और वहां लोगों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे मूव करने में वक्त लगेगा, बिकॉज पीपल आर यूज टू ऑफ यूजिंग देयर ओन कार्स। और जब आप ट्रांजिट सिस्टम लेकर आएंगे, तो लोग अब देखेंगे कि अच्छा जी, इन इलाकों में भी चलती है, ये तो मेरे घर के बाहर भी आती है, तो मुझे इसको यूज करना चाहिए, राइट? दैट माइट टेक टाइम। They also help reduce inequality by supporting those who depend on public transport. आपका लो इनकम का जो तबका है, अगर सब्सिडीज बहुत लार्ज और पुअरली टारगेटेड है, तो वो इनएफिशिएंट हो सकता है, वो टैक्स पेयर पे बर्डन हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअरली मैनेज हो सकता है, एंड दैट्स अ बैड थिंग। होता रहता है हमारे यहाँ भी, आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हमारे यहाँ भी ये ऊट पटांग हरकतें करते हैं इस किस्म की। ये कोई पहला रेड बस सर्विस जो आई है, ये कोई पहली नहीं आई है, इससे पहले सीएनजी भी आई थी, उससे पहले एक मेट्रो भी आई थी। इट्स जस्ट दैट कि गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं करती है, राइट? सो इन कंक्लूजन, मास ट्रांजिट शुड रिसीव अ सब्सिडी, खासतौर पे अर्बन एरियाज में, क्योंकि वहां पे बहुत इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, मैस लोगों की मूवमेंट हो सकती है, तो यू नीड दैट फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, राइट? सो समथिंग अलोंग दिस लाइन, ये मेरी हो जाती है एक्सप्लेनेशन विद इवैल्यूएशन। So with reference to a country that is known to you must talk about it. Explain the main causes of unemployment and consider which of these causes is most significant. ठीक है? तो पहली बात, थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट के टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन कर दो। एक तो नंबर वन, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट वर्कर्स आर लुकिंग एंड एबल टू वर्क बट दे कैन नॉट फाइंड वर्क। तो ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन होती है। एक यूजली मुझे तो स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल ये दो अच्छे लगते हैं, या फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल ये भी दोनों अच्छे हैं। इट्स अप टू यू विच वन यू वांट टू टॉक अबाउट, एंड यू जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन इट। तो पहले तो तुमने अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करना है, राइट? कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? दैट पीपल आर लुकिंग या सीकिंग वर्क
but can't find, right? So something along this line. एंड देन दो टाइप्स के अंदर दो बोला है इन्होंने, दो तो नहीं बोला। तो फिर तुम्हारी मर्जी है, मेरा ख्याल है तीन जो है ये तीनों ही मेंशन कर दो। यू हैव द frictional, which happens because of the mismatch between the workers, or the workers are looking for better paying jobs. You have the structural. Structural के अंदर you usually talk about कि आपका कोई structural industrial changes आ रहे होते हैं जिसकी वजह से permanent job losses होती हैं. And then you have the cyclical, and cyclical is because of the overall fall in the aggregate demand. You get yourself 3 marks, दो इनमें से किसी भी के ऊपर दो मिल जाएंगे, 1 मार्क इसकी डेफिनेशन पे मिल जाएंगे. Consider which of these are in your country, जो भी आपकी country है, obviously Pakistan, and you should write about Pakistan. एनालाइज दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से. आई थिंक पाकिस्तान के केस के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान यू कैन ऑब्जर्व, एक तो नंबर वन, देयर इज ऑलवेज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ऑलराइट, फ्रिक्शनल होती है यूजुअली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कौन सी नौकरी कहाँ पे कितने की मिल रही है, ताकि सही बंदा सही जगह अप्लाई कर ले. देयर इज अ लैक ऑफ दैट, राइट? एंड आप कुछ भी कोशिश कर लो, ऑनेस्टली दिस अनएम्प्लॉयमेंट नॉट गोना गो एनीवेयर. दूसरी जो हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है एंड वी आर प्रोग्रेसिंग एवरी डे, देयर आर ऑलवेज न्यू इंडस्ट्रीज दैट आर कमिंग अप एंड वी आर मूविंग फ्रॉम लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक यू कुड से प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू टर्शरी. तो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट वी डू सी के लोग की नौकरियां चली जाती हैं. सिग्निफिकेंट की जहां बात करते हैं तो आई वुड वांट टू सजेस्ट दिस दैट जहां तक फ्रिक्शनल का मसला है, फ्रिक्शनल जो है अफेक्ट फ्यूअर पीपल एज कंपेयर टू स्ट्रक्चरल, एंड इट्स मोर टेम्पररी देन द स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल जो है वो टेम्पररी नहीं होती है, स्ट्रक्चरल परमानेंट होती है. सर्टन इंडस्ट्रीज आर डेड, नाउ द वर्कर्स नीड टू रीट्रेन एंड मूव ऑन टू समथिंग न्यू. तो जहां तक बात की जाए विच वन इज मोर सिग्निफिकेंट, तो मेरे ख्याल में डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में दोनों ही अच्छी खासी प्रिवेलिंग है. बट क्योंकि पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है और हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते जा रहे हैं वक्त के साथ, तो इसकी वजह से, क्योंकि ये अफेक्ट भी ज़्यादा लार्जर सम ऑफ पीपल को करता है एंड इट इज़ मोर ऑन द परमानेंट साइड. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि यार यू नो व्हाट, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के केस में अगेन. तो then I say I sort of like wrote a little bit of this. Mm. So yeah, in Pakistan, structural unemployment is a major issue due to lack of skill development and poor education system. So people lack required jobs, IT वगैरह की तरफ से. तो even if the companies are opening up, they're unable to find नौकरी of that sort. फिर फ्रिक्शनल भी बहुत कॉमन है. यंग लोग स्कूल ग्रेजुएट होके आए हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जाना है, किधर अप्लाई करना है. तो ये भी काफी एक सिग्निफिकेंट इशू है. तो इन एवेल्युएशन हम बात करेंगे कि बोथ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर सीरियस. स्ट्रक्चरल इज मोर सिग्निफिकेंट इन पाकिस्तान. It is long term and difficult to reduce without major investment in education, training, and infrastructure. Again, this is one of those major things. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये थोड़ा सा लैक करता है ना, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हमें उसका मसला हल करने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है. तो अगर हम फ्रिक्शनल को ठीक करना चाहते हैं, थोड़ी सी टेम्पररी जॉब मैचिंग सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर आपकी वो लगता है, जॉब फेयर्स लगते हैं, तो डेफिनेटली कैंपस प्लेसमेंट होती हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप करें तो दैट वुड बी डेफिनेटली वेरी बेनिफिशियल.
फिर असेस करें वेदर सप्लाई साइड पॉलिसी इज द ओनली वे। चलें जी, आई एम श्योर दैट यू नो व्हाट टू डू इन दिस वन। सबसे पहले तो सप्लाई साइड पॉलिसी और लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करना है इस ऐसे के अंदर। ठीक है। सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर आपको पता है, सप्लाई साइड पॉलिसी में आप इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को लेंगे, आप इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी को लेंगे। ठीक है। एंड देन आप बताएंगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक कर सकती है कि नहीं कर सकती है। रिमेंबर, सप्लाई साइड पॉलिसी एक तो नंबर वन, फ्रॉम द लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, obviously it's much more on the long run side for it to have an impact, right? And plus, um, there's obviously a lot of money involved, a lot of budget issues that can come up with it. लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। सप्लाई साइड पॉलिसी जब आप करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट टू द राइट, पोटेंशियल बढ़ती है मुल्क की, रियल आउटपुट भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी चाहिए। अब बात यह है कि ये वाला जो सवाल है इसके अंदर कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का हल है ये, बिकॉज ये सिक्लिकल का हल तो नहीं है। इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड डाउन है और आपने सप्लाई साइड पॉलिसी की हुई है, तो उससे तो और मजीद अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लेट मी शो यू थ्रू द डायग्राम इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इज, आपकी इकोनॉमी के अंदर ये पोटेंशियल है और आपकी इकोनॉमी डाउन हुई हुई है डिमांड गिरने की वजह से। अब यहाँ आपने सप्लाई साइड पॉलिसी लगा के इसको और आगे की तरफ शिफ्ट करा दिया, तो आपकी पोटेंशियल जो पहले यहाँ थी और इतना गैप था, अब वो वहां चली गई है और गैप और मजीद हो गया है। तो दिस इज नॉट गोना सॉल्व द प्रॉब्लम। यू अंडरस्टैंड दैट? ये अगर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की तरफ आप जाते हैं तो ये डेफिनेटली स्ट्रक्चरल का तो हल निकाल देगी। बिकॉज स्ट्रक्चरल क्या होता है, जब आपको ज़्यादा नई इंडस्ट्रीज लगती हैं, आप लोगों को एजुकेट ट्रेन करके आप उनको उसकी तरफ मूव कर देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का बाइस भी बन सकती है, बिकॉज वर्कर्स कैन गेट रिप्लेस्ड, राइट? So the point is, for and against supply side, and then we want another policy that you should write about. It's a must thing that you must talk about because उसने कहा is the only। तो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट का हल अगर आपको निकालना है तो सप्लाई साइड पॉलिसी किस तरीके से हो सकती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, टाइम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाउ विल पीपल रिस्पॉन्ड, राइट? हो सकता है आपने लोगों को जो एजुकेशन ट्रेनिंग दी है वो एप्लीकेबल ही नहीं है आपकी इकोनॉमी के लिए, आपने पता नहीं कौन सी एजुकेशन दे दी है, तो लोगों की नौकरियों में कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। तो यहाँ पे डिमांड साइड पॉलिसी विल बी मोर एप्लीकेबल फॉर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एन एनालिसिस ऑफ द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एटलीस्ट वन ऑल्टरनेटिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। तो वन ऑल्टरनेटिव की आपने बात करनी है, तो वन ऑल्टरनेटिव के अंदर यू कुड टॉक अबाउट have I talked about over here? मैं खाली सिंपल सा डिमांड साइड पॉलिसी या इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन पोर्टल्स और इस तरह की जो बात उन्होंने लिखी है, जोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ाने में असिस्ट कर लिया जाए, तो समथिंग अलोंग दैट लाइन आई थिंक वुड बी गुड वे टू गो अबाउट दिस ऐसे। सही। So that's the structure of this. You can look at the evaluation here, right? तो वही बात की है जो ऊपर आप बात करते हो। देखो, मैं तुमको एग्जैक्ट एग्जामिनर के वर्ड्स बता रहा हूँ। evaluation is sort of an extension of what you have written above। ऊपर आपने सप्लाई साइड पॉलिसी फॉर अगेंस्ट लिखा है, एक ऑल्टरनेट पॉलिसी फॉर एन अगेंस्ट लिखा है। while looking at that you want to make an assessment and an evaluation in terms of कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन के अंदर कौन सी चीज का। देखो, रिमेंबर,
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तुम इकोनॉमी से खत्म नहीं कर सकते, स्ट्रक्चरल भी तुम खत्म नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट डिमांड साइड को तुम शॉर्ट रन में तो हल कर सकते हो। होता यह है कि जब तुम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देते हो ना, तो एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, समटाइम्स इट कॉजेज द एग्रीगेट डिमांड टू शिफ्ट टू द राइट इन द शॉर्ट रन। तो वो शॉर्ट रन में एक्चुअली आपका हल भी निकाल देता है। और फिर जब लॉन्ग रन के अंदर लोग एजुकेटेड और ट्रेंड हो जाते हैं, तो फिर आपका एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट भी हो जाता है। तो दोनों चीजें हो जाती हैं उसके अंदर। दैट वुड बी वन वेरी गुड इवेल्युएशन फॉर यू टू राइट, कि सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर सर्टेन पॉलिसीज शॉर्ट रन में एडी को शिफ्ट करती हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, और लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करती हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। ठीक। Moving on to our last question of the day, so let's just fall through it. Explain how import tariff might correct an imbalance in the current account of the balance of payment, and consider whether these tariffs are the best way of correcting such an imbalance. तो is it the best way? लेकिन उससे पहले मुझे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में टैरिफ, करंट अकाउंट डेफिसिट, इम्बैलेंस लिखा है, सॉरी डेफिसिट नहीं लिखा। इम्बैलेंस मीन सरप्लस, और वो दोनों हो सकता है। यूजली आप डेफिसिट का हल निकालने के लिए ही इसको यूज करते हो। ठीक है, तो 3 मार्क के लिए तो मुझे नजर आ रहा है कि मैंने क्या डिस्कस करना है। नंबर 1, इम्पोर्ट टैरिफ क्या होते हैं। नंबर 2, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, और इम्बैलेंस का क्या मतलब है, सरप्लस और डेफिसिट दोनों। रिमेंबर दैट। फिर जब आप टैरिफ लगाते हो तो प्राइस में इजाफा आता है, उसकी वजह से इंपोर्ट्स में रिडक्शन आती है, और आपका मसला हल हो जाता है। डायग्राम मे बी यूजफुल बट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। मैं तो कहूंगा इसमें जरूर डायग्राम बनाया जाए, द वर्ल्ड सप्लाई वाला डायग्राम। यू रिमेंबर दैट डायग्राम। आपको क्या कहते हैं, क्वांटिटी, प्राइस, डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक सप्लाई, दिस इज द डोमेस्टिक प्राइस। लेकिन वर्ल्ड सप्लाई कम है, वर्ल्ड सप्लाई, वर्ल्ड प्राइसेस कम है, तो आप Q1 से लेके Q2 इंपोर्ट करते हैं। फिर जब आप टैरिफ लगाते हैं, तो टैरिफ लगाने की वजह से वर्ल्ड सप्लाई प्लस टैरिफ की वजह से PW+T ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से अब लोकल प्रोड्यूसर्स थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं और कंज्यूमर्स कम बनाते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स का रेवेन्यू भी मिल जाता है, और लोग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने को भी मिल जाता है। और जो इंपोर्ट है, जो पहले Q1 से Q2 आ रहा था, अब सिर्फ Q3 से Q4 आता है। ये आपका इसका डायग्राम है। इस डायग्राम को बना के मैंने मार्क काटे हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चों ने ये डायग्राम बनाया, उन्होंने सीधा सा डेफिनेशन में लिखा कि देखें जी, टैरिफ लगाने से इंपोर्ट्स में रिडक्शन हो जाती है, Q1 से लेके Q2, Q1 Q2 से लेके Q3 Q4 पे चली जाती है। मैंने एक मार्क काट दिया, क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि टैरिफ लगाने की वजह से प्राइस ऊपर जाती है। आई एम लुकिंग फॉर दिस टर्म, कि प्राइस ऊपर चली जाती है। अब टैरिफ लगाने से क्या ये बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप फिर बात करते हैं कि देखें जी, आपने टैरिफ लगाया, लेकिन जो गुड आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो इन इलास्टिक है, तो लोग तो फिर भी मंगाते रहेंगे, राइट? वेदर आपने टैरिफ लगाया, अगले ने तुम्हारे गुड्स पे टैरिफ लगा दिया। आप इंपोर्ट कम कर रहे थे, आपका एक्सपोर्ट भी कम हो गया, क्योंकि अगले ने रिटेलिएट कर दिया। तो इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट। इधर व्हाट आई सी इज कि उसने जो लिखा है बेस्ट वे ऑफ करेक्टिंग सच एन इम्बैलेंस, इसमें कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की इन्होंने इसमें बात नहीं की है। तो आई गेस ये 12 मार्क के अंदर ही इसकी बात हो सकती है, बिकॉज वहीं पे तुम्हारे पास देर इज इनफ स्पेस टू टॉक अबाउट वेदर इट इज बेस्ट और नॉट। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इवैल्यूएशन के अंदर एक ऑल्टरनेट पॉलिसी जरूर इंट्रोड्यूस करो, कि टैरिफ की जगह हो सकता है कि सब्सिडीज माइट वर्क मोर इफेक्टिवली, और मे बी करेंसी डेप्रिसिएशन माइट अफेक्ट मोर इफेक्टिवली। डन हो गई बात। फिर आ जाते हैं हम 5B की तरफ। 5B भी एक आसान सा सवाल दिया है। अ कंट्री हैज अ persistent डेफिसिट। देखो जी, ये वर्ड को गौर से पढ़ो, persistent, बार बार डेफिसिट हो रहा है, दैट मीन्स
ये कोई वन ऑफ चीज नहीं है, ये कोई सीजनल मसला नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आपके गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप अच्छे गुड्स नहीं बनाते हैं, आप प्राइस कंपेटिटिव नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कुछ सीरियस मसला है। On the current account of his balance of payment, assess the likely consequence for the domestic and external economy of this कंट्री। अगर आपके पास कंसिस्टेंटली डेफिसिट है तो बताएं जी आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कैसे इसके इम्पैक्ट आएंगे और एक्सटर्नल में आपको क्या इम्पैक्ट आएंगे। तो डोमेस्टिक की जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप बात कर रहे हैं योर लोकल फर्म्स एंड योर कंज्यूमर्स इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट एंड योर जीडीपी। जब आप एक्सटर्नल की बात करते हैं तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, राइट। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू एडी का इम्पैक्ट और आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के थ्रू एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग विद दिस? So first they want is an explanation of what is meant by a persistent deficit। एक वो outflow जो ज्यादा हो रहा है और continuously outflow is greater than the inflow। More money is going out than coming into the country because of the trade deficit। तो फिर जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो आई वुड लाइक यू इन डोमेस्टिक फर्म्स के अंदर, इनफैक्ट लेट मी जस्ट शो यू एन ऐसे ऑफ दिस ना। करंट अकाउंट डेफिसिट को मैंने समझाया कैसे। पहले करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट होते हैं? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर, प्राइमरी इनकम्स एंड सेकेंडरी इनकम्स। डेफिसिट का मतलब क्या है? मोर मनी इज गोइंग आउट देन कमिंग इन। डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर ऑब्वियसली दैट मीन्स आप एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे हो और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। परसिस्टेंट है तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली गिरता जाएगा, आपकी इकोनॉमी में से पैसा बाहर जाता जाएगा, जीडीपी आपकी वर्स होगी, एम्प्लॉयमेंट वर्स होगी, लोगों की वेजेस खराब होंगी एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी मजीद हर्ट होगी इस पूरे सिनेरियो के अंदर। मूविंग ऑन, फिर यू वांट टू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल साइड। एक्सटर्नल साइड में डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आपकी जब वीक होगी तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका एक्सपोर्ट इंप्रूव हो जाए और इंपोर्ट बेहतर हो जाए, लेकिन शॉर्ट रन में इट्स नॉट गोना वर्क इन योर फेवर, राइट। ये तो लॉन्ग रन के अंदर आपका मसला हल करेगा। साथ ही में जब आपकी करेंसी वीक होगी तो इन्वेस्टर्स वगैरह लूज कॉन्फिडेंस करेंगे। करेंसी वीक होना इज अ साइन ऑफ एन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इट्स अ प्रॉब्लम फॉर योर lenders। दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन lending यू द मनी। तो एज अ रिजल्ट फिर आपने इवेल्युएशन बतानी है कि भाई जो अगर परसिस्टेंट डेफिसिट है तो इट इज प्रॉब्लम बोथ internally and externally. You need to have reasonable government policies in place to sort your structural problems out। तो उसकी वजह से जो है ये फिर तुम्हारा आंसर फिनिश हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स दैट, सिंपल।